Hello class 7th, welcome back to your English class. Today we'll be starting with a new book that you have received, and this book is basically a supplementary reader. Supplementary reader is a sort of a story book, you can say, which helps you to make a better understanding towards the English stories. So the name of the book is An Alien Hand, and we'll be studying the first chapter of your book. So as you proceed with the book and we come on the index, we see that the first chapter of your book is The Tiny Teacher. So let's begin with the chapter. In your supplementary reader books, you will see that whenever there is a new chapter, starting में कुछ lines दी हुई हैं जो कि basically इसलिए दी हुई है जो आपको चैप्टर का इंसाइट देती है, मतलब आगे इस पार्ट में आप क्या पढ़ने वाले हैं उन चीज़ों की एक बेसिक समरी बताती है. तो लेट्स बिगिन. दिस इज द फर्स्ट चैप्टर नेम द टाइनी टीचर. क्या क्या हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं. दो So very small, the ant is unbelievably intelligent and hardworking. Among the various kinds, the commonest ant is black or red. Ants live in a comfortable home called anthills. So this is the content. Let's begin with the chapter. Name the smallest insect you have seen and the wisest. Is it the fly? No, it isn't. Is it the mosquito? No, not the mosquito. Then it must be a worm. No, none of these. It is an ant, the commonest, the smallest, but the wisest insect. The story of an ant's life sounds almost untrue, but people have kept ants as pets and have watched their daily behavior closely. So we know a number of facts about the tiny, hardworking, and intelligent creature. An ant uses its feelers or antenna to talk to other ants by passing messages to them. Watch a row of ants moving up or down the wall. Each ant greets all the other coming from the opposite direction by touching their feelers. So what did we see? These lines explain that भले ही ये ants बहुत छोटे क्रिएचर होते हैं पर ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और हार्डवर्किंग होते हैं. बहुत सारे अलग अलग काइंड में सबसे कॉमन, बहुत सारे टाइप्स ऑफ एंट्स में सबसे कॉमन एंट होती है ब्लैक और रेड कलर की. और एंट्स एक कंफर्टेबल घरों में रहते हैं जिनका नाम होता है एंटहिल्स. इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर व्हाट वी आर बीइंग टोल्ड, आपको क्या लगता है सबसे छोटा इंसेक्ट कौन होता होगा और सबसे समझदार? फ्लाई यानी कि एक मक्खी? नहीं, बिल्कुल नहीं. अच्छा, एक मॉस्किटो? बिल्कुल भी नहीं. तो फिर जरूर एक वॉर्म होगा? नहीं, इनमें से कोई भी नहीं. सबसे ज्यादा वाइज और स्मॉल इंसेक्ट होता है एक एंट, जो सबसे ज्यादा कॉमन है, लेकिन सबसे छोटे होने के बावजूद भी ये सबसे ज्यादा समझदार इंसेक्ट होती है. जो एंट की लाइफ की स्टोरी होती है बहुत ज्यादा, जब आप अभी आगे पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा अनट्रू, बहुत ज्यादा अनरियल लगेगी. अनट्रू मतलब जो कि रियल ना साउंड करे वैसी लगेगी आपको. बट बहुत सारे लोगों ने एंट को पेट्स की तरह रखा है अपने घर में, सिर्फ उनके डेली नेचर को ऑब्जर्व करने के लिए. सो वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स जो कि टाइनी इन हार्ड वर्किंग क्रिएचर्स के बारे में सच है. जो एंट्स होते हैं ये अपने एंटीना यानी कि ये देखिए आपका जो एंट का हेड है इसके ऊपर जो दो ऐसे आउटग्रोथ दिख रहे हैं, इसको एंटीना या फीलर्स कहते हैं. ये इनका इस्तेमाल करते हैं एक दूसरे से बातें करने के लिए या अपने मैसेजेस को एक एंट से दूसरे एंट में पास करने के लिए. कभी इन्हें आपने अगर रो में चलते हुए देखा हो आप या डाउन वॉल के अक्रॉस, तो ये सारे के सारे एंट्स एक दूसरे को ग्रीट करते हुए चलते हैं. किस तरीके से? जो भी जैसे ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है ना, तो ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहे एंट्स एक दूसरे को ग्रीट करते हैं आपस में अपने फीलर्स को टच करा के. यहाँ पे देखिए अपने फीलर्स ये टच करवा रहे हैं एंटीना को. सो दिस इज व्हाट बेसिकली दीज इंसेक्ट्स डू टू कॉन्टैक्ट द अदर इंसेक्ट. मूविंग अहेड, there are many kind of ants. The commonest among them are the black and red ones. We have seen them since we were children, but haven't paid enough attention to them. Where do they live? In their comfortable homes called nests or anthills. Each has hundreds of little rooms and passages. In some of these rooms, the queen's ant lay eggs. Other are nurseries for the young ones, called grubs. Workers have their reserved quarters. They spend most of their time searching for food. Some rooms serve as storehouses of this food. Soldiers have separate barracks. No worker has ever tried to live in a soldier's house. No soldier has ever gone out searching for food. No worker or soldier or cleaner has ever harmed a grub.
So you see, an ant's life is very peaceful. Each does its share of work intelligently and bravely and never fights with other members of the group. So आगे हमें क्या पता चलता है ants के लाइफ के बारे में? ऐसा तो बहुत सारे तरीके की ants होते हैं, लेकिन इसमें भी सबसे कॉमन जो है वो ब्लैक और रेड है। हमने देखा है जब से हम बच्चे थे, या आप तो अभी भी बच्चे हैं, आपने देखा होगा डेफिनेटली इन ants को, लेकिन हमने कभी भी बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया इन पे। ये रहते कहाँ हैं? इनका एक कंफर्टेबल सा घर बनाते हैं जिन्हें हम नेस्ट या एंट हिल कहते हैं। हर एक नेस्ट या एंट हिल में 100 से भी ज़्यादा रूम्स और पैसेजेस होते हैं। मतलब ये जो पिक्चर आपको दिख रही है ये एक एंट हिल की पिक्चर है। हर एक एंट हिल में 100 से ज़्यादा पैसेजेस या कमरे होते हैं। इन सम ऑफ दीज रूम्स द क्वींस एंट ले एग। अब ये रूम्स भी बहुत डिवाइडेड होते हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी कहीं भी घुस रहा है। सो व्हाट विल हैपन, किसी एक कमरे में जो क्वीन एंट होती है वो एग्स ले करती है, बाकी जो कमरे होते हैं वो नर्सरीज होते हैं यंग वंस के लिए। इन यंग वंस को हम ग्रब्स भी कहते हैं, यानी कि एंट के छोटे बच्चों को, किड्स को हम ग्रब्स कहते हैं। इनमें अब क्वीन के फिर कुछ कैटेगरीज होती है वर्कर्स की। क्वीन वो जो एग ले करती है, वर्कर्स जो काम करते हैं। वर्कर्स का अपना खुद का एक रिजर्व्ड क्वार्टर होता है, वो अपने जगह पर रहते हैं। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड। अपना ज़्यादातर समय वर्कर्स खाना ढूंढने में निकालते हैं। कुछ रूम्स जो होते हैं वो स्टोर हाउस, इसी घर में, इसी एंट हिल में जो 100 कमरे होते हैं उनमें से कुछ कमरे सिर्फ इसलिए खाली छोड़े जाते हैं ताकि उनको स्टोर हाउस की तरह यूज़ किया जा सके उस खाने के लिए जो वर्कर्स कलेक्ट करते हैं। फिर आती है कैटेगरी सोल्जर्स। इनके अलग बैरक्स यानी कि सेक्शंस होते हैं उसी एंट हिल में। इनके सेक्शंस अलग और सेपरेट होते हैं। नो वर्कर हैज़ एवर ट्राई टू लिव इन अ सोल्जर्स हाउस। कोई भी वर्कर कभी भी किसी सोल्जर के घर में रहने की कोशिश नहीं करता है। नो सोल्जर हैज़ एवर गॉन आउट सर्चिंग फॉर फूड। और ना ही कोई सोल्जर वर्कर्स के काम में इंटरफेयर करता है, यानी कि वर्कर्स का काम था फूड को ढूंढना, तो नो वर्कर इंटरफेयर्स इन द वर्क ऑफ द सोल्जर्स एंड वाइस वर्सा। No worker or soldier or cleaner has ever harmed a grub. अब ये जितने भी कैटेगरीज थे इनके घरों में, वर्कर, सोल्जर या क्लीनर यानी कि वो जो सफाई करते हैं उस एरिया की, उन्होंने कभी भी किसी ग्रब यानी कि उनके छोटे बच्चों को हार्म करने की कोशिश नहीं की। क्या आपने देखा है, एन एंट्स लाइफ इज़ वेरी पीसफुल। बहुत शांत और अच्छी ज़िंदगी जीती हैं ये। हर एक एंट, हर एक ऑर्गेनिज्म अपने वर्क का, अपने शेयर का, अपने हिस्से का काम करता है इंटेलिजेंट तरीके से और स्ट्रांगली। और कभी आपस में, ग्रुप के आपस के मेंबर्स में कोई झगड़ा नहीं होता है। दे लीड अ वेरी सिंपल एंड सूदिंग लाइफ। सो बाय नाउ वी कम टू द कॉम्प्रिहेंशन चेक। ये कॉम्प्रिहेंशन चेक विल बी योर होमवर्क। द स्टोरी ऑफ एन एंट्स लाइफ साउंड ऑलमोस्ट अनट्रू। इन italicized phrases, the italicized phrases means almost untrue मतलब जो सच्चाई ना लगे, तो हाईली एग्जैजरेटेड यानी कि बहुत बढ़ा चढ़ा के कही गई बात, टू रिमार्केबल टू बी ट्रू, या नॉट बेस्ड ऑन द फैक्ट्स। ऑलमोस्ट अनट्रू मतलब टू रिमार्केबल टू बी ट्रू, मतलब विश्वास करने के लिए जो बहुत डिफिकल्ट लगे, तो ये हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। एन एंट इज द स्मॉलेस्ट, वही वाला लाइन आएगा, स्मॉलेस्ट एंड वाइजेस्ट क्रिएचर, स्मॉलेस्ट बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट। We know a number of facts about the ant's life because few people, कहाँ गई वो few people वाली line? Because a few people have kept ants as pets and have watched their daily behavior closely. तो ये हो जाएगा इसको कंप्लीट करने के लिए। In what ways is ants life peaceful? ये आपको इस सेक्शन में आंसर मिलेगा। So this will be done by you yourself. Moving on to the next part of the chapter. इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? So the queen ant has a pair of wings which she casts off before she begins to lay eggs. Eggs hatch and become grubs. Grubs change into cocoons and cocoons break to bring forth complete ants. The life of an ordinary ant is the ant in the ant hill is a book which many of us seldom open. तो ये सारी बातें, जैसे कि द क्वीन एंट के, जो क्वीन एंट होती है उसके पास विंग्स होते हैं जो कि वो शेड कर देती है उससे पहले जब वो एग ले करना शुरू करती है। जब ये एग्स हैच करते हैं तो ये यंग वंस यानी कि ग्रब्स में बदलते हैं, फिर वो कोकून्स में कन्वर्ट होते हैं और वो कोकून ब्रेक करके एंट की लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। एक ऑर्डिनरी लाइफ जो एक एंट जीती है एंट हिल के अंदर, वो एक ऐसी किताब है जिसको हम बहुत ही रेयर ओपन करते हैं। सेल्डम मतलब कभी कभी। ओके, सो रीडिंग द चैप्टर।
The queen is the mother of the entire population of the colony. It lives for about 15 years. It has a pair of wings. मतलब ये जो क्वीन होती है ये पूरे फैमिली पूरे पॉपुलेशन की मदर की तरह एक्ट करती है, क्योंकि एग ले करना इसका काम था तो ऑब्वियसली ये मदर की हो गई। इन एक क्वीन की लाइफ स्पैन अप्रोक्सीमेटली 15 ईयर्स की होती है। हैव यू एवर नोन दिस? क्या आपको पहले कभी पता था कि एक चींटी की लाइफ स्पैन 15 साल तक हो सकती है, होती है। इसके एक पेयर ऑफ विंग्स होते हैं। इट हैज अ पेयर ऑफ विंग बट बाइट्स देम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट। यानी कि ये जो विंग होता है ये उसको हटा देती है, शेड कर देती है राइट उस मोमेंट से पहले जब ये वेडिंग फ्लाइट यानी कि द टाइम व्हेन इट गेट्स मैरिड या इट गेट्स रेडी टू रिप्रोड्यूस, उस वक्त ये अपने विंग्स को शेड कर देती है। This flight takes place on a hot summer day. The queen leaves the nest and goes out to meet a male ant or drone high up in the air. On its return to earth, it gets rid of its wing and then does nothing but lay eggs. Eggs hatch and grubs come out. Soldiers guard them. Workers feed and clean them and also carry them about daily for airing, exercise and sunshine. 2 or 3 weeks later, grubs become cocoon and lie without food or activity for 3 weeks or more. Then what happens basically? अपने wedding flight के पहले अपनी wings को shade करती है। होता क्या है, ये पहले ये जो एक्शन होता है दिस बेसिकली हैपन्स ऑन अ हॉट समर डे। गर्मी के किसी दिन में जो क्वीन बर्ड होती है वो अपना नेस्ट छोड़ के किसी मेल एंट को ड्रोन भी कहते हैं, उससे मिलने के लिए बाहर हवा में जाती है। वहां पे एयर में वो उससे मिलती है और जब वो वापस आ रही होती है अर्थ पे तो उस दौरान वो अपने विंग्स को उससे गेट रिड मतलब छोड़ देना, उसको हटा देती है। और उसके बाद वो सिर्फ एक काम करते हैं पूरे लाइफ, दैट इज एग्स को ले करना। हर एक एग जब हैच करता है तो उससे ग्रब्स निकल के आते हैं। सोल्जर्स का काम होता है उन ग्रब्स को प्रोटेक्ट करना। वर्कर्स का काम होता है उन्हें फीड और उनकी खाना खिलाना और उनकी साफ सफाई करना, और साथ ही साथ उनके लिए उनको कैरी करना। ये हैं आपके ग्रब्स जो वर्कर्स कैरी कर रहे हैं, तो वो उन्हें कैरी करते हैं अपने एंट हिल के बाहर ताकि वो उससे एयरिंग, एक्सरसाइज और सनशाइन प्रोवाइड करवा सकें। तो बेसिकली वर्कर्स बहुत हार्ड वर्क करते हैं, यू कैन क्लियरली सी। अब इस एक्शन के 2 से 3 वीक्स बाद ग्रब्स ब्रेक करके कोकून बन जाते हैं एंड लाई विदाउट फूड और एक्टिव, और वो पड़े रहते हैं 3 हफ्ते तक और बिना किसी एक्टिविटी या बिना किसी फूड के कोकून के अंदर। दिस इज द कोकून जो एंट निकल बिना रप्चर हुए हुए ये कोकून था। नाउ इट्स द टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग। अब जो समय आता है ये टीचिंग और ट्रेनिंग का टाइम होता है। जो नए एंट्स होते हैं ये आई हैव नॉट रेड दिस वेट। New ants learn their duties from old ants as workers, soldiers, builders, cleaners, etc. After a few weeks training, the small ants are ready to go out into the big world of work. An ant hill is a home not only for ants but also for some other creatures. Beetles, lesser breeds of ants, or the greenfly. Why do ants want these alien creatures to live in their nests? For several reasons. Some give off smell pleasant to ants' senses. Others give sweet juices, and some are just pets or playthings like cats and dogs to human beings. The greenfly in the ant's cow is the ant's cow. The ants train it to give honeydew like milk, which with a touch of their antenna. They milk it just as we milk the cow. Have humans learned as much as ants have? Perhaps they have, but they haven't put their learning to good use. They may still learn a few things from this tiny creature, the tiny teacher: hard work, sense of duty and discipline, cleanliness, care for the young ones, and above all, a firm loyalty to all the land where they live. So what did we see at the other part of the chapter? ये इनकी ग्रोइंग साइकिल पहले तो बता रही है। फिर जब ये कोकून ब्रेक करते हैं तो एक परफेक्ट एंट इससे निकल के आती है 3 हफ्ते बाद। अब जो समय है इनकी टीचिंग और ट्रेनिंग का समय आ चुका होता है, यानी कि इनको अपनी लाइफ को लीड करने के लिए जो बातें सीखनी चाहिए वो उन्हें सिखाया जाता है, बताया जाता है। जो नए एंट्स आते हैं ये अपनी ड्यूटी सीखते हैं पुराने एंट्स से। वर्कर्स अगर होंगे तो वो वर्कर्स का ड्यूटी, सोल्जर्स होंगे तो सोल्जर्स, या जिस भी सेक्शन को वो बिलोंग करेंगे उस सेक्शन की एंट अपना काम सीखती है। आफ्टर अ फ्यू वीक्स ट्रेनिंग, कुछ हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद जो छोटी एंट होती है वो काम पे जाने के लिए
रेडी हो जाती है एंड इट इज फ्री टू मूव आउट टू द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क, यानी कि वो अब अपने बेबी लाइफ से निकल के एक एडल्ट लाइफ को एंटर करती है, यानी कि वहां वो जिंदगी जहां उसे अब काम करना है। एक एंट हिल जो होता है, जिसको अभी तक हम पढ़ रहे थे कि ये एक चींटी का घर होता है। एक एंट हिल इज अ होम नॉट ओनली फॉर एंट्स बट ऑल्सो फॉर सम अदर क्रिएचर्स। ये जो एंट हिल है ये सिर्फ चींटियों को ही घर या रहने की जगह नहीं देता है, और भी ऐसे क्रिएचर्स जैसे कि बीटल्स या एंट के कुछ रेयर ब्रीड्स या ग्रीन फ्लाई जैसे क्रिएचर्स भी इनके घरों में रहते हैं। लेकिन वाई डू एंट्स वांट दीज एलियन क्रिएचर्स टू लिव इन देयर नेस्ट? आखिर एंट जब इतनी हार्ड वर्किंग है और इतनी और सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करने वाली, तो वो क्यों चाहती है कि ये क्रिएचर्स इनके नेस्ट में आके रहें? बहुत सारे रीजंस हैं। इनमें से कुछ इंसेक्ट जैसे कि बीटल, लेसर ब्रीड्स और ग्रीन फ्लाई वगैरह में से कुछ ऐसे हैं जो एक प्लेजेंट स्मेल रिलीज करते हैं जो एंट्स के सेंसेस को अच्छी लगती है। कुछ हैं जो किसी तरीके की स्वीट जूसेस को रिलीज करते हैं, एंड कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ पेट्स की तरह या फिर किसी प्ले थिंग की तरह, जैसे हम लोग अपने घरों में कैट्स और डॉग्स पालते हैं अपने फन के लिए, अपने फैमिली में एक नया मेंबर ऐड करने के लिए, जस्ट फॉर द लव एंड केयर टू गिव टू समवन। उसी तरीके से ये एंट्स भी कुछ पेट्स पालती हैं। दिस इज सो न्यू ऑब्वियसली। इनमें से जो ग्रीन फ्लाई नाम की क्रिएचर हमने देखी, तो द ग्रीन फ्लाई इज द एंट्स काउ। ये जो ग्रीन फ्लाई होती है, जैसे हमारे लिए गाय हमें दूध देती है, उसी तरीके से लिए एंट्स को लिक्विड प्रोवाइड करने वाली जो फ्लाई है दैट इज द ग्रीन फ्लाई, तो वो उनके लिए काउ की तरह एक्ट करती है। द एंट्स ट्रेन इट टू गिव द हनी ड्यू। क्या देती है? जैसे हमें काउ मिल्क देती है, वैसे ग्रीन फ्लाई एंट्स को हनी ड्यू देती हैं। कैसे? अपने एंटीना से उन्हें टच करके। दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काउ। जिस तरीके से हम काउ से मिल्क एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसी तरीके से ग्रीन फ्लाई का यूज करती हैं एंट्स। सो बेसिकली इतनी सारी बातें जानने के बाद ऑब्वियसली आपको बहुत सारी न्यू चीजें पता चली एक एंट की लाइफ के बारे में। क्या हम ह्यूमंस ने इतनी सारी चीजें सीखी, एंट जितनी सारी बातें जानी वो चीजें सीखी? परहैप्स, मे बी कि हाँ हमने बहुत सारी चीजें सीखी हैं, लेकिन कभी भी क्या हमने उनका सही इस्तेमाल किया? ये एक बड़ा क्वेश्चन है। किया तो बहुत सही, अगर नहीं किया तो हमें सीखना चाहिए कि हर एक लर्निंग का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए। अभी भी बहुत सारी they may still learn a few things from, अभी भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम टाइनी टीचर्स से सीख सकते हैं, जैसे कि हार्ड वर्क क्या होता है, सेंस ऑफ ड्यूटी क्या होती है, काम करने का तरीका, डिसिप्लिन, साफ सफाई, अपने से छोटे लोगों का ख्याल रखना, और इन सबसे ऊपर एक लॉयल्टी रखना, एक ईमानदारी रखना हर एक उस इंसान से, जिस भी इंसान से आप जिंदगी में कभी भी जुड़ रहे हैं, उनसे एक लॉयल बिहेवियर रखना, जो आज के ज़माने में बहुत कम लोग रखते हैं। सो मेक श्योर कि आप ये सारी चीज़ें एंट्स से सीखें, क्योंकि ये सारी चीज़ें हार्ड वर्क, सेंस ऑफ ड्यूटी, डिसिप्लिन, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लॉयलिटी, ये आपको एक अच्छा इंसान ज़रूर बनाएंगी। सो कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज कॉम्प्रिहेंशन चेक अगेन। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर अ ग्राफ टू बिकम अ कंप्लीट एंट? ये कॉम्प्रिहेंशन चेक के क्वेश्चंस आपका होमवर्क है इस लेक्चर से। इन पांचों के क्वेश्चंस आप लिख के रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसमें एक्सरसाइजेस के भी कुछ क्वेश्चंस हैं, ये सॉल्व ऑल दिस। एक्सरसाइजेस हम बुक में ही करेंगे, कॉम्प्रिहेंशन चेक हम कॉपी में करेंगे। सो मेक श्योर आप प्रिपेयर्ड हो। इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद द नोट्स ऑफ दिस चैप्टर, और इस चैप्टर में अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो मेक श्योर आप अपने एडवाइजरी को बताएं, मैं ज़रूर आपको असिस्ट करने की कोशिश करूंगी। आई होप आपको सारी चीज़ें बाय नाउ समझ में आ गई ही हो। सो till then, take care and stay at home, study well, kids. See you in the next lecture.